So this is the lecture number 3 for the chapter circles for the class 10th, and we have done up to question number 8 of the second exercise. Now in question number 9 it is given that there is a circle in which xy and x dash y dash are the two parallel tangent, that is this x and y and x dash and y dash are the two parallel tangents with the center O पर सर्कल का सेंटर है, and another tangent AB is drawn to this between these two parallel tangent touching the circle at C. Then you have to prove that, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB is equal to 90 डिग्री. ये हमें गिवन है क्या, XY is parallel to X dash Y dash, and आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री का. This you have to prove. Now to prove it, I have to join that this point P, let us say Q, and join this line this OA and join this. ये आपको join करो OP, OQ and OC. ये आपको join करो. Now in triangle OPA and triangle OQB, I'll prove that these two triangles are congruent. Which two? These two triangles I'll prove that OPA and OCA triangle. These two triangles I'll prove congruent. Why? OP is equal to OC. These are radii. ये दोनों radii हैं. OA is equal to OA. ये common है. And angle P is equal to angle C. दोनों 90 डिग्री, क्योंकि the tangent is perpendicular to radius. Tangent is perpendicular to रेडियस. टेंजेंट रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. कौन कौन से? OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो आई विल प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री के हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है. सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सेम तरीके से, एंड सेम तरीके से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस और एक साइड्स. ये रेडियाई हो गई और OA कॉमन हो गया 90 डिग्री. RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे. सो सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर. Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 कितना 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर है. इन चारों एंगल का सम 180 डिग्री. लीनियर पेयर, रेडियस 180 डिग्री का एंगल. सो एंगल 1 की जगह आप लिख दीजिए एंगल 2 की जगह 2 रखिए. एंगल 3 और एंगल 4 की जगह 3 लिख दीजिए. फ्रॉम स्टेप नंबर दिस 1 and 2. दिस स्टेप नंबर 1 and 2. अब एंगल 1 और 2 इक्वल है तो 1 की जगह 2 रख दिया. 3 और 4 इक्वल है तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया यहाँ पर. सी इट. तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 90 डिग्री. इधर आकर के डिवाइड हो गया. और एंगल 2 प्लस 3 देखिए, एंगल 2 प्लस 3 एंगल AOB के बराबर है. फिगर में देखिए. सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल AOB 90 डिग्री का हो गया. दिस इज So this is the question number 9 of this exercise. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हमने. ये दोनों एंगल बराबर हो गए. These two triangles are congruent. These two angles are equal. The sum of all these 4 angles is equal to 180 degree. In place of angle 1, write angle 2. In place of angle 4, write angle 3. And the sum of these two angles coming out to be 90. And you have to prove that angle AOB is equal to 90 degree. This is the question number 9. Now take the question number 10. What is saying that you have to prove that the angle between the two tangents drawn from on the external point of circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point at the point of the center. तो ये प्रूव करना है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली. एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, इट मेक्स अ सप्लीमेंट्री एंगल्स with the line segment joining the center and the point of contact with these two tangents. Supplementary angle proof करने हैं हमें. That is हमें ये given है PA and PB are tangents. ये आपके tangents हैं.
दीज आर द टेंजेंट्स, और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल P बना रहा है टेंजेंट्स एक्सटर्नल पर, और जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज एंगल AOB, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, मतलब इन दोनों एंगल सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एंगल A और एंगल P दोनों 90 डिग्री के हैं। रीजन आपको पता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल AOB कितने डिग्री का? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल B भी 90 डिग्री का है। एंगल P हमें पता नहीं, एंगल AOB वी डोंट नो, तो इट इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। 360 माइनस 180 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गए। सो देयरफॉर एंगल P एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ in question number 11 is just the this is the extension part of the question number 8. Again there is a circle, there is a parallelogram which is subscribing a circle. In place of a quadrilateral it is given that it is a parallelogram, and you have to prove that it is a rhombus PQRS. These are touching point of the parallelogram. So in place of quadrilateral in question number 8 is what it was given that ABCD is a quadrilateral. In this it is given that ABCD is a parallelogram and it is touching the circle at points PQRS, and you have to prove that when it is a parallelogram then touching a circle, then this subscribing parallelogram is a rhombus. इसको आपको rhombus prove करना है। तो as usual in question number 8, yeah, first of all I'll prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. So as usual, first of all AP is equal to AS, PB is equal to BQ, DR is equal to SD, and RC is equal to CQ. You know that tangent length of the tangent from the external point to a circle are of equal length. तो वही हम प्रूव कर रहे हैं। इनको सबको ऐड करिए। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग ऑल दीज, तो AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इज इक्वल टू AS प्लस SD प्लस BQ प्लस CQ। हमने सबको ऐड कर लिया। AP प्लस PB देखो, AP प्लस PB AB के इक्वल है। DR प्लस RC फिगर में देखिए, DR प्लस RC इज इक्वल टू CD, and AS plus SD it is equal to AD, and BQ plus CQ it is equal to BC. ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम देन द अपोजिट साइड आर इक्वल, AB and CD are equal, AB and CD are equal, तो इन प्लेस ऑफ CD you can write AB. Opposite side of the parallelogram are equal. Similarly in place of BC you can write AD. BC की जगह AD लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। You can write the reason opposite side of the parallelogram. तो twice of AB is equal to twice of AD. तो इसका मतलब हमारे पास AB किसके इक्वल आ गया? AD के इक्वल आ गया। AB और AD एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हो गई। AB is equal to AD, पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हो गई। सो देयरफॉर ABCD is a rhombus. रीजन आप देंगे इसका, क्या रीजन देंगे? पैरेललोग्राम is a rhombus whose consecutive sides are equal. Consecutive sides are equal. वो पैरेललोग्राम rhombus होता है जिसकी consecutive sides equal हो जाती हैं। और हमने इस पैरेललोग्राम गिवन था ABCD and we have proved that the consecutive sides are equal. AB is equal to AD प्रूव कर लिया। AB is equal to AD, so therefore it is a rhombus. वो पैरेललोग्राम rhombus होता है जिसकी consecutive sides इक्वल होती हैं, जिसकी कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू द क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं 13 करूंगा। यू हैव टू प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडिंग सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है, quadrilateral subscribing it, and you have to prove that the opposite side
subscribing supplementary angles at the center. तो गिवन क्या है, ABCD is a quadrilateral, और हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड दैट इज AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, या एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अपोजिट साइड सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस से P टचिंग द सर्कल एट PQRS, मैंने इसमें ज्वाइन कर दिया OQ OS OQ OR एंड OP, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। आई प्रूव दैट, एंड आई प्रूव दैट इन ट्राइंगल ORC एंड ट्राइंगल OQC, ये दोनों ट्राइंगल आई प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट आई प्रूव इट। और दिस वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज OR इज इक्वल टू OQ, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, RC इज इक्वल टू CQ, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल से इक्वल होते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, tangents from the same point to the circle or of equal length, external point से कोई हम tangent ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, and OC is equal to OC, ये आपका कॉमन हो गया, OC is equal to OC, ये हमारा कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल ORC is congruent to triangle OQC by side, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो therefore angle 1 will be equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, corresponding parts of congruent triangle are congruent, angle 1 angle 2 के equal हो गया। Similarly I can prove that is angle 3 will be equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, angle 5 is equal to angle 6, and angle 7 is equal to angle 8. Similarly angle 7 is equal to angle 8, ये सेंटर है जो कि सर्कल का O है, ये सेंटर। सो हमने सारे एंगल्स कौन कौन से, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 8 एंगल 7 के इक्वल। सो वी हैव प्रूव इट नाउ, बिकॉज द सेंटर पर सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सारे एंगल का सम 360 है। नाउ बी वेरी केयरफुल, in place of angle 1 you write angle 2, in place of angle 4 you write angle 3, in place of angle 7 you write angle 8, in place of angle 5 you write angle 6 because they are equal। तो एंगल 1 की जगह 2 लिखिए, 4 की जगह 3 लिखिए, 7 की जगह 8 और 5 की जगह 6 एंगल्स लिख लीजिए। तो आई एम राइटिंग दैट, तो इन प्लेस ऑफ एंगल 1 आई एम राइटिंग 2 को एज इट इज रखा, एंगल 3 को एज इट इज रखा, 4 की जगह हमने 3 लिख लिया। सिमिलरली हमने एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख लिया, 6 की जगह 6 ही रखा दिया, एंगल 7 की जगह 8 लिख दिया और एंगल 8 को एंगल 8 ही रहने दिया। ठीक है, ऊपर देखिए ध्यान से, और इन सारे एंगल का सम कितना है, इट इज इक्वल टू 360। इन सारे एंगल का सम 360 है। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 8, दो बार हो गए, 360 हो गया। आप ध्यान से देखिएगा फिगर में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 2 प्लस एंगल 3 एंगल BOC है, 2 प्लस 3 एंगल BOC है, और एंगल 6 प्लस 8 एंगल AOD है, एंगल AOD ध्यान दीजिएगा। और 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था कि ये वाले एंगल का सम सप्लीमेंट्री हो गया इस तरह से। नाउ सिमिलरली you can say that angle AOB is equal to plus angle COD is equal to 180 डिग्री। सिमिलरली लिख दीजिएगा। सिमिलरली कौन कौन सा, एंगल AOB एंड एंगल COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने सिमिलरली लिखा था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा लेंथ दिया, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करें, एंगल 3 और 4 बराबर हो जाएगा, 7 और 8 बराबर, 5 और 6 इक्वल। तो इन प्लेस ऑफ 1 आई हैव रिटन 2, इन प्लेस ऑफ 4 आई हैव रिटन 3, इन प्लेस ऑफ 7 आई हैव रिटन 8, इन प्लेस ऑफ 5 आई हैव रिटन 6, बिकॉज हमें ये दोनों एंगल चाहिए थे।
and we have obtained BOC plus angle AOD is equal to 180 degree, which is supplementary. Okay, we'll continue in the next lecture. Thank you.